I am back. I'm Dr. Anushruti, and welcome back to another episode. Today, we are talking about prevention and management of work related musculoskeletal disorders. We have wonderful batch of students with us. Let me tell you guys that before starting the topic, I would request one of you to please speak on the topic. What exactly is work related musculoskeletal disorders? Can I have Dr. Sheila? Can you tell me about the topic? What do you think of it? What is it? मैम मस्कुलर डिसऑर्डर में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे पेन जॉइंट्स में पेन होता है जिसकी वजह से ना मोस्टली पेशेंट को चलने में दौड़ने या फिर नॉर्मल वर्क करने में भी दिक्कत आती है। जॉइंट्स पेन होता है तो इसकी वजह से मतलब अगर पेशेंट नॉर्मल भी कोई काम करेगा ना तो भी उसको बहुत ज्यादा पेन होगा हर जॉइंट में, जैसे कि एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, नी, एंकल। Hmm. To a point, this is right. To a certain point, this is right. But today, we are conducting this webinar for the sake of gaining in-depth knowledge about this topic. Okay? Let me tell you one thing, how we are going to proceed it. Okay, we'll start with the very first thing, that is the overview of the topic. ओके मैम। Now, before starting, there is one thing you need to know is that today, whatever we are going to discuss is related to the occupation of the patient. Okay? Work related definitely means related to the occupation. Whatever the occupation of the patient is, we are going to discuss that. And then we are going to discuss how do we need to proceed with the prevention and management of the musculoskeletal disorders. All right? ओके। Good. यस मैम। Yeah. Basically, work related musculoskeletal disorders, which is our today's topic, is something that is occurrence of musculoskeletal disorders like joint pains, muscle pains, fractures, carpal tunnel syndromes, neck pain, etc. Any pain in the body part, any body part, due to the reason should be the due to work, due to their occupation, is basically known as work related musculoskeletal disorders. Very easy, very common thing, and I don't think there would be any extra terms used to define this thing, work related musculoskeletal disorders. Now, when we speak about MSD, work-related musculoskeletal disorders, there are disorders that encompass a range of conditions. Can you tell me some of the ranges you feel? Any type of disorders you feel that can happen? मैम शोल्डर I didn't hear you. What? शोल्डर पेन, Shoulder pain. Yeah, this can be a part. Shoulder pain. Yes. What else? एल्बो, शोल्डर पेन मैम, नॉम Hmm. अगर हम कोई वेट गेन करते हैं, Hmm. या फिर हम कोई ऊपर से कोई चीज ले रहे हैं Hmm. तो उसमें इसमें शोल्डर की जो रेंज आती है उसमें नॉर्मली हल्का हल्का सा पेन होता है। इससे पहले स्ट्रेच होगा फिर पेन होगा। Good. Good. एल्बो रिस्ट। Hmm. See, यस मैम। there can be a lot of disorders, some of which I told while giving the example, that was soft tissues injuries, right? And back pain, neck pain, some of the very basic, very common injuries. I think you must have seen a lot of patients these days coming of neck pain, back pain, shoulder pain, elbow pain, knee pain, यस right? मैम। यस मैम। Moving ahead, the first segment would be understanding the work-related musculoskeletal disorders. Okay. Now, first and foremost thing is the reason behind
the happening of musculoskeletal disorders? What would be the reason? Tell me, what could be the पेन reason मैम, behind this? See, the reason is हीट, very, very, very common. That is awkward or bad posture while working. We can take any example. We can take any example from any field, and we will see that posture is the only thing, posture is the sole thing, the only thing that actually is the reason behind these musculoskeletal disorders. Bad यस मैम, posture, I would say. Bad posture, and lifting heavy weights, doing things more than their capacity. What do you feel यस about it? मैम, We often tend to see a lot of patients that they do things more than their capacity. They don't have the capacity to do so, but they often take up things beyond their capacity. So, posture, राइट, overdoing things, and also, yes, health. If one is not healthy, one is not fit for the work, they can definitely not go ahead with that particular occupation because that won't be considered suitable for them to work with, right? यस, यस मैम. Yeah. So these are some of the reasons behind work-related musculoskeletal disorders. Moving ahead, let me tell you who are prone to this. What do you understand by prone? प्रोन पोजिशंस. नहीं. Here prone means कि कौन से लोग इस चीज से पीड़ित होने के लिए ज्यादा संभावना रखते हैं, मतलब उनको ज्यादा चांसेस हैं कि उनको ये हो. ठीक है. Who जो are जी, prone? हाँ. से turn on your जो camera, मैम, please. यस Camera मैम, on करके बोलो so that the audience who's viewing this जो episode can see who's actually speaking. Yes. मैम जो ज्यादातर जो होते हैं अडल्ट जो जिम जिम ज्वाइन करके रखते हैं नॉर्मली, जो नॉर्मली अपने मतलब घर पे एक्सरसाइज करते हैं, वेट गेन करते हैं, उन्हें लिफ्टिंग का नहीं पता होता और वो ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं नॉर्मली. और जो लोग वर्क पैलेस में बाहर काम करते हैं उन्हें ज्यादातर मतलब काफी घंटों का बैठने का काम होता है, तो बैठे रहते हैं जिसकी वजह से उनका पोस्चर भी खराब हो जाता है कई. True, very true. So these are some of the things, that are reasons that make people prone towards musculoskeletal disorders. Okay. Moving यस. ahead, we have ergonomics workplace design. I hope every one of you is aware of ergonomics. What is ergonomics? Why ergonomics is needed? What is the need of the ergonomics? And why we are talking about ergonomics in this topic? Well, ergonomics is basically the science of workplace designing so that the patient, or I would say the employee, the student, anyone, whatever the workplace we are talking about, whatever the environment we are talking about, is fit to work over there. हमें एम्प्लॉय को वर्क प्लेस में फिट नहीं कराना होता है, वर्क प्लेस को एम्प्लॉय वर्कप्लेस के को लिए फिट एम्प्लॉय कराना. के अकॉर्डिंग. ठीक है. यस मैम. वेरी बेसिक थिंग, एंड ऑफ द लाइन कि एम्प्लॉय वर्क प्लेस के लिए फिट नहीं बनेगा, वर्क प्लेस एम्प्लॉय के लिए फिट बनेगा. बेसिक थिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ergonomics. Now, why do you think that we are talking about ergonomics over here? What do you think about this? मतलब मैम हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, इन्वायरमेंट को अपने हमारे अकॉर्डिंग सेट होना होगा. जैसे कि क्योंकि जो वर्क पैलेस के काम है वो तो मैम रेगुलर चलेंगे, रेगुलर होंगे वो तो Hmm. हमें वहाँ का सेटअप कुछ इस तरीके से करना है कि उससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये चीज हमें खुद करनी पड़ेगी. जैसे कि वर्क पैलेस का है तो मैम अगर 24 आवर्स काम करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा. तो हमें खुद के पोस्चर को मेंटेन करके रखना होगा, जिसकी वजह से
हाँ, ना हमारा पोस्चर खराब हो, ना हमें कोई पेन हो, क्योंकि मैम नेक पेन, बैक पेन ये नॉर्मल ही है कि आज हर दूसरे इंसान को ये चीज हो रही है। सर्वाइकल पेन बहुत कॉमन कॉमन है। वेरी ट्रू। तो एर्गोनॉमिक्स का बेसिक यूज ही यही है, टू रेस्ट्रिक्ट और टू अवॉइड दीज मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ताकि ये सब अकर ही ना हो एट फर्स्ट प्लेस। देयर इज नो यूज इफ एर्गोनॉमिक्स इज नॉट बीइंग यूज्ड, देयर इज नो यूज ऑफ एनी एक्यूमिनिटीज लाइक वी से अच्छा डेस्क है, अच्छी चेयर है, नो, कोई फायदा नहीं है इफ एर्गोनॉमिकली वो सेट नहीं किया गया है तो। ठीक है, नाउ देयर आर वेरियस टेक्निक्स। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल टेक पर्टिकुलर occupation and then we'll discuss that why and what type of ergonomics is needed. Now let me say gym trainer. You Yes, told ma'am. about gym trainer, Sheila. Yes, ma'am. Now what do you think, what could be the ergonomic used over there? The first thing is good posture. ओके, Yes, ma'am. जिम रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एन ऑक्यूपेशन दैट इज अ कॉल सेंटर एम्प्लॉय। बेसिक चीज है, डेस्क जॉब, Yes, राइट? ma'am. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ergonomic structure over there? What should be the ergonomic technique used? A call center employee, and especially when we are talking about a call center employee, we are actually discussing all the employees, all the workplaces that include a desk job, right? Yes, ma'am. कुछ पता है ergonomics से रिलेटेड कि क्या यूज हो सकता है उसमें? मैम इसमें हम क्लिनिकली रिहैब की जो टेक्निक्स है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि डेस्क डेस्क तो सेम रहेगी, बट है ना हम उसकी जो डिजाइन है उसको या चेंज कर दें, या फिर हम हमारे कई जैसे पिलोज है, फिजियो पिलोज है, उन्हें यूज कर सकते हैं। नेक पिलोज है, उन्हें यूज कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन के लिए भी काफी चीजें उन्हें यूज कर सकते हैं हम। और नॉर्मली बैक पेन के लिए भी काफी चीजें क्लिनिकल रिहैब के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। Good. Yeah, these are some of the points that needs to be discussed when we are talking about ergonomics at a workplace that includes a desk job. Starting from the very first thing, it is to have a proper angle, a proper degree of angle of all the joints while sitting on the workplace. Because being at a call center, you really need to sit on a particular place for a very, very long time. Sometimes it can even take 7 to 8 hours of a day. So that time we need to be very sure about the proper angle of degree. One should not be scourged every time. One should have a neck pillow if he or she is suffering from neck pain. And even for giving rest, one can have a neck pillow, cervical pillow. For the hip bone, we can have coccyx pillow. For the back, we can have back pillow or anything. Yes, sir. कुछ लोगों को देखा है, they put a very thick towel at their backrest. Yes, ma'am. Round pillow, round towels. So these are a few customized factors, I would say customized techniques hai, jo people should acquire on their own on the basis of their need. Otherwise, universal, what is there? 90 degrees of knee flexion. Yes, The ma'am. hand should be there at 90 degrees. The screen, the computer screen today, nothing is going to happen without a computer screen. The screen should be at point at first, एकदम स्ट्रेट दिखना चाहिए स्क्रीन से। Yes, आप ma'am. देख रहे हो, अगर मैं ऐसे करके देखूंगी, my neck is really going to get hurt. If my Yes. screen is too high, my neck is really going to get hurt. अभी भी हम बैठे हैं, कहाँ रखा है हमने? अपने आई लेवल पे रखा है। This is how the screen should be maintained, the proper distance and the proper height. Yes, ma'am. So these are the basic things I would say. ये 1% of ergonomics है,
We are not going deep into the ergonomic factor, but this is just 1% of ergonomics that needs to be applied when we are talking about a desk job. So this is how we can implement. Today's main motive behind this webinar is to make all the doctors, all the young physiotherapists aware of the treating protocol of someone who's coming to you with a work related musculoskeletal disorder. आपके Yes, पास ma'am. पेशेंट्स आएंगे, आते ही है. व्हेन यू टेक हिस्ट्री, हम जब ऑर्थोपेडिक असेसमेंट बनाते हैं या कोई भी असेसमेंट लेते हैं, टॉप प्रायोरिटी पे क्या होता है? व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग? हिस्ट्री टेकिंग, Clinical checkup, physical checkup. हम्म, ये सब फैक्टर्स होते Complete. हैं ना. उसमें हम जी पूछते हैं मैम. ना कि आपकी जॉब क्या है, व्हाट इज योर जॉब Yes, ma'am. प्रोफाइल. हमारे पास Okay. एक हाउसवाइफ भी आती है, डू वी आस्क कि आप Yes, घर ma'am. पे काम क्या करते हैं? देयर इज अ मसल पुल, देयर इज अ स्ट्रेच, देयर इज अ स्ट्रेन, स्प्रेन, एनीथिंग. वी ऑलवेज आस्क व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस, राइट? Yes, ma'am. तो वो क्यों पूछते हैं? इसीलिए पूछते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, इज इट अ वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, राइट? पेशेंट का पेन फैक्टर पता करने के लिए. एग्जैक्टली. Yes, Moving ma'am. ahead to the third segment, that is risk assessment and hazard identification. Now, this is where the observation of a physiotherapist plays a role. Yes, ma'am. All right? Physiotherapy. Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो? बोलो. फिजियोथेरेपिस्ट है, मेनली हम ऑक्यूपेशंस का पता करेंगे. अगर वो हाउस वाइफ है तो हम उनके डेली रूटीन्स के काम पूछेंगे कि आप क्या करते हो. जैसे कि किचन में काम करते हुए कई कई बार हाथ स्ट्रेच भी हो जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता. लेकिन जब वो अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते हैं या फिर बताते हैं डेली रूटीन वर्क में वो ये करते हैं, उन्होंने बकेट उठाई, उन्होंने किचन में काम किया, उन्होंने ऊपर से कोई चीज उतारी, तो इसकी वजह से शोल्डर हो गया, बैक हो गया, ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से उनके काफ मसल्स में, हैमस्ट्रिंग्स में मसल पेन स्टार्ट हो गया. उससे हम उनका पेन फैक्टर पता कर सकते हैं उनके ऑक्यूपेशंस के थ्रू. अगर कोई वर्किंग मैन है तो वो अपनी जॉब के बारे में बताएंगे, तो मतलब नॉर्मली बोल दिया कितने घंटे हम बैठ के काम करते हैं, तो उससे हमें फैक्टर का पता चलेगा. काफी देर बैठने की वजह से या फिर काफी देर स्क्रीन को देखने की वजह से पोस्चर ठीक नहीं है, उसकी पोस्चर ठीक नहीं है, उसकी वजह से सर्वाइकल, नेक, बैक पेन, काफी रीजन है मैम. Hmm. Right. When we are talking about risk factors and hazard identification, जब identification word आ ही गया, that means that we need to take a proper assessment of the patient, right? यस मैम. यस मैम. अब assessment के time, always and always consider workplace identification and history taking. अगर कोई आपके यस पास मैम. सिविल इंजीनियर आ रहा है, आपके पास कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई मेसन आ रहा है, मेसन समझते हैं, कोई हाँ प्लम्बर मैम. आ रहा है, कोई भी ओके. patients can be from various fields. Always take care about one factor, that is to know about the workplace identification. Workplace के बारे में पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है. यस मैम. Workplace factors will let you know, will tell you the proper thing कि क्यों दिक्कत हो रही है, क्या वो वजह है. हमेशा बोलते यस हैं ना, मैम. कारण को ठीक करना जरूरी है. रीजन को ठीक करना इज रियली इंपॉर्टेंट, rather देन हम करते रहे, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेन कम हो रहा है और पेशेंट दोबारा उसी वर्क प्लेस में जा रहा है, वही चीजें कर रहे हैं, तो कभी हमें रिजल्ट ही नहीं दिखेगा ना, जो रिजल्ट के लिए हम थ्राइव कर रहे हैं. टू अटेन द पर्टिकुलर रिजल्ट, जो हमारा गोल है, वो हम कभी मैच ही नहीं करेंगे. राइट. So to attain the goal, it is very important to actually address the main cause of the problem. तो हमेशा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असेसमेंट, जब हम उनका फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, ऑलवेज असेस द वर्क प्लेस. उनसे प्लीज. पूछो डेस्क जॉब है, डेस्क कैसे है, कहाँ है, चेयर है, लकड़ी की है,
कैसी है, एर्गोनॉमिक चेयर है, कितनी देर बैठते हैं, कितनी देर का ब्रेक लेते हैं, हाउ मच डू दे स्टैंड अलोंग, वेयर डू दे कीप देयर स्क्रीन, स्क्रीन टाइमिंग कितना है, फोन भी अगर चला रहा है तो फोन कहाँ पे है, किधर है, कैसे है. All यस these मैम। factors are the workplace identification assessment. यहाँ तक क्लियर है. यस मैम। और उसके बाद इसी में वी विल बी ब्रिंगिंग एर्गोनॉमिक्स, दैट इज टू आइडेंटिफाई कि एर्गोनॉमिक इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं. Always remember, if you have a patient of musculoskeletal disorder that is work related, there is always the ignorance, the avoidance, or the, I would say, lack of ergonomic rules, lack of ergonomic techniques. Only this is the reason that work related musculoskeletal disorders are happening. Okay, so in risk यस assessment मैम। and hazard identification, it is very important to understand the lack of ergonomic techniques. Moving ahead towards the next segment, that is preventive measures and interventions. अब हम आते हैं मेन बात पे, प्रिवेंशन करेंगे कैसे. यस मैम। What do you think? Tell me, कैसे प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, क्या क्या रीजंस होंगे, क्या क्या टेक्निक्स होंगी that you are going to use to prevent these things, musculoskeletal disorders. अभी तो हम ट्रीटमेंट पे बात ही नहीं कर रहे, इट इज प्रिवेंशन. देखो, प्रिवेंशन मीन्स होने से पहले ही उसे टाल देना या फिर अपना बेस्ट देना so that these things cannot occur anytime. This is prevention. जो मेन कॉज है पेन का मैम, या फैक्टर है, अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उसको उस चीज के लिए पहले ही अवॉइड कर देंगे कि भाई आप अगर 12 घंटे बैठ के काम करते हो तो हो सके उतना बीच में ब्रेक लो, वॉक करो, थोड़ी देर घूमो, फिर बैठ के काम करो, ताकि वो चीज मतलब जो पेन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट ही ना हो। और अगर किचन में अगर हाउस वाइफ है तो उस उन्हें हम ये बोलेंगे कि है ना, अगर आप इतने घंटे किचन में काम करते हो या फिर आप स्ट्रेचिंग करते, आप ऊपर से कोई चीज ले रहे हो तो वो न लें। जितना अगर आप वेट का ले सकते हो उतना ले, ज्यादा वेट गेन ना करें। जैसे कि आपने बकेट उठा ली तो आप उसको ना उठाएं। अगर नॉर्मली जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं क्लिनिक में तो वो अपना मेन कोर्स बताते हैं, हमें शोल्डर पेन है, 10 दिन से था नहीं अब है। तो हम उन्हें यही बताएंगे कि आपने 10 दिन में क्या किया, तो बोलेंगे हमने मैम ने ये किया वो किया। तो जो चीज उन्होंने करी है, जैसे कि बकेट उठाई है या फिर किचन में कोई काम किया है या फिर सफाई की, घर की सफाई में ही कई बार स्ट्रेचिंग हो जाती है शोल्डर की, बैक की, या फिर ज्यादा एज की जो लेडीज होती है उनमें ये चीज जल्दी होती है, क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स ऑलरेडी वीक होती है। और अगर ये वो काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि पेन और ज्यादा हो जाता है कम की बजाय। तो जिस चीज से उनका पेन की कॉजेस निकले हैं, हम धीरे धीरे उनको कम करने के लिए उनको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ काम बताएंगे कि आप इन्हें स्टॉप कर दें, ना करें, जिसकी वजह से आपका जो पेन है वो आगे कंटिन्यू ना हो। वेरी गुड, वेरी सटल आंसर, टू द पॉइंट आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. जब हम थैंक बात यू। करते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की, कैन वी चूज जॉब रोटेशन एज अ पॉइंट. जॉब रोटेशन का मतलब समझते हो कि जॉब ही छोड़ दो, कोई और जॉब चेंज कर लो. नो मैम, ये सेम चीज बिल्कुल जॉब भी में आएगी। पॉसिबल नहीं है, नो मैम। बिकॉज हम किसी से भी लाइवलीहुड नहीं ले सकते उनका. What we can do as a therapist, as a doctor, is to tell them, suggest them what is the right way to their job. अब आपके पास एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसका काम है, कोई बिल्डर आ रहा है, कोई मेसन आ रहा है, कोई मिस्त्री आ रहा है, उसका काम है बोरे उठाना, टू कैरी ऑल दोज हैवी वेट्स. वी नीड टू टेल देम द प्रॉपर वे. हम जिम में सिखाते हैं, जब हम लिफ्टिंग कराते हैं अपने पेशेंट्स को भी, वी डू टेल देम what is the proper posture of picking up a weight. वही सेम चीज we need to tell to the patient जो कि बहुत लो पेशेंट। ग्रेड लेवल का है, जो कि मिस्त्री का काम कर रहा है, घर बना रहा है, ये सारे काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, they do not know about this. यस मैम। So this is how we are going to tell them the proper way. उनका intervention ऐसे ही होगा. We need to tell them the proper way, the proper posture of conducting their own job. इसीलिए
प्रीवियस पॉइंट हमने ये बात किया था वर्क प्लेस को असेस करना, सो दैट हमें पता ही नहीं होगा तो हम उनको क्या बताएंगे कि क्या गलती हो रही है और क्या चीज सही करने की जरूरत है उन्हें। यस मैम। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमारा एर्गोनॉमिक्स विल बी प्लेइंग द मेजर रोल। उसके बाद हमें उनको सजेशंस देने हैं एंड टिप्स बताना है। यू कैन नोट इट डाउन इफ यस यू मैम। विश टू। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का ये पार्ट है to let them know what exactly is the thing that is going wrong with them at their workplace and what are the ways through which they can rectify it. ठीक है, यस मैम। move ahead to case studies and practical example. Now this is my favorite section. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। इतना सब मैंने बोला, इधर तक आई टॉट यू वॉट एवर थिंग्स रिलेटेड टू द टॉपिक। नाउ टेल मी, लेट मी गिव यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल केसेस जो आपके पास डे टू डे आ सकते हैं, ठीक है। एंड देन टेल मी कि उनको कौन कौन सी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं और क्यों हो सकती है, ठीक है। हम किसी और का स्टार्ट ना करके एक डॉक्टर का स्टार्ट करते हैं। आपने हॉस्पिटल में इवन ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, ड्यूरिंग योर जॉब, ड्यूरिंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, यू वुड हैव सीन कि फिजियोथेरेपी के ओपीडी में डॉक्टर्स आते हैं, आते यस हैं, मैम। आके क्या बताते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स होती है। अब उनको भी जो प्रॉब्लम हो रही है पेन की, वो वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर ही है। सो व्हाट डू यू यस थिंक, मैम। क्या क्या होता होगा, टेल मी। सर्वाइकल पेन बहुत कॉमन है। सर्वाइकल पेन कॉमन है, एग्जैक्टली, और बैक पेन कॉमन है मैम। यस। सबसे ज्यादा मैंने जो देखा है वो है एंकल पेन। हम्म। प्लांटर फेशिया का पेन बहुत ज्यादा। नॉर्मली जो सीनियर डॉक्टर्स थे, एमडी थे, उनके सबसे ज्यादा हमने प्लांटर फेशिया का पेन देखा है। ट्रू। उन्हें हील्स के लिए अवॉइड किया। सॉफ्ट सॉफ्ट शूज पहनने के लिए बोला। मेन सबसे ज्यादा देखा सर्वाइकल पेन, बैक पेन और प्लांटर फेशिया, एंकल पेन। तो ये फैक्टर्स हैं, ये रीजंस, यस ये मैम। चीजें हैं, सम ऑफ द वर्क यस रिलेटेड मैम। डिसऑर्डर्स। अब आपके पास कोई गार्ड आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक, मैम। गार्ड की जॉब आपको पता ही है क्या होती है, गार्ड। तो यस टेल, मैम। गार्ड होगा तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी सम ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स ऑफ अ गार्ड। बैक पेन। व्हाई। क्योंकि मैं बैक पेन और बैक पेन और रिस्ट पेन। क्योंकि मैम बैक पेन काफी देर उनको चेयर पे बैठना पड़ता है, अपने ऑफिस में बैठना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और रिस्ट पेन का कॉजेस हमने देखा था कि कई बार क्या होता है, उनके पास एक वो सेफ्टी, अपना सेफ्टी डंडा होता है, उससे क्या होता है उनके कई बार क्या है कि स्ट्रेच, या फिर बोल सकते हैं कि एकदम से क्लच होने के कारण रिस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। और एक ये था एल्बो पेन। हम्म। एल्बो पेन, यस मैम। नी पेन भी हो सकता है, मॉल वगैरह के नी गार्ड्स खड़े रहते हैं, दे काफी देर डोंट, खड़े रहते हैं, हाँ। नी वो तो पेन। खड़े रहते हैं, नी पेन हो सकता है। देन वी हैव अ हाउस हेल्प, मेड आती है घर पे, हाउस हेल्प्स यस आते हैं, मैम। उनका क्या यस लगता है मैम। आपको? वो तो सबसे प्रोन होते हैं सबसे ज्यादा, व्हेन दे बैक वॉश पेन। डिशेस। हाँ, बैक पेन होता है, बैक पेन। बैक पेन एंड काफ मसल पेन। काफ काफ मसल मसल्स पेन। का। व्हाट कुड बी द रीजन बैक बिहाइंड दिस, काफ मसल पेन क्यों हो रहा है, कौन सी काफ मसल एक्टिविटी से हो पेन रहा है। मतलब काफ मसल पेन उनको मतलब नॉर्मली वो एक घर से दूसरे घर, या फिर है ना, मतलब जब काम करते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो जॉइंट्स में पेन, जॉइंट्स में जोर आता है, उनके जॉइंट्स में जैसे जैसे प्रेशर आता है वैसे वैसे पेन होता है। तो उनके भी एंकल फेशिया का पेन भी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जब हम फ्लोर टू फ्लोर काम करके नीचे आते हैं, तो उनको तो अलाउ, तो वो बोलता है कि उनकी हमारे नीज में पेन हो गया, मसल्स में पेन हो रहा है। जब वो देखते हैं कि कई काफी लेडीज जैसे कि एज में, उनके तो एज के कारण भी होता है, क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है नीज पे। और बैक पेन बैठे रहने की वजह से, क्योंकि वो सारे काम मोस्टली बैठे बैठे ही करते हैं। Certainly these are some of the factors that accumulate and
get towards the musculoskeletal disorders to various patients from various fields of their occupations. This was all about musculoskeletal disorders that are due to work related, occupational related factors, and we discussed what could be the preventive measures. Now, Sheila, tell me what are some of your questions regarding this? क्या अभी तक के, हाँ, as we are moving to the end of the webinar, what do you think? Do you have any questions regarding this? कुछ पूछना है या आपको कुछ फीडबैक देना है सॉरी इस टॉपिक के मैम, ऊपर? जैसे कि है ना, आपने बोला कि वर्क प्लेस हो गया, हाउस वाइफ हो गई, उनको तो हम है ना मतलब बता देंगे कि आप ये चीज अपनी प्रिवेंशन में रखो, ये अवॉइड करो, वो करो, वर्क प्लेस वाले, क्योंकि वो एजुकेटेड है। मुझे ये पूछना था कि जो अनएजुकेटेड है लोग, जो मतलब कि बाहर ना चाहते हुए भी उनको बहुत काम करने पड़ते हैं, या फिर वो कुछ नहीं की भी करते फिर भी उनको बैक पेन होता है, नेक पेन होता है। तो इसमें काफी जगह मैंने ये भी किया है कि जैसे कि नॉर्मली जाके जैसे कि टेंट लगवाए हैं, वहां पेशेंट्स को पूछा है, तो मैम वो लोग अपना जो पेन होता है ना, वो हम्म। बता नहीं सकते, मतलब बता ही नहीं पाते कि भाई हमें, वो एक ही चीज बोलते हैं, हमें यहाँ पेन है, तो उसको हम देखेंगे भी ना, लाइक मैंने ये उनको फील किया मसल्स कि भाई यहाँ पेन है, तो वो एक ही चीज बोले, नहीं यहाँ पेन है, तो वो लोग मतलब कि वो अपनी वो जो चीज होती है उसको कैसे हमें बताएं, मुझे ये नहीं समझ आता वो कैसे, जितना भी ट्राई करूं मैं, लेकिन वो है ना, वो बता भी देते हैं, लेकिन या तो मैं नहीं समझ पा रही, पता नहीं, बट वो जिस अकॉर्डिंग मुझे बताते हैं वो चीज नहीं समझ आती, वो लोग कैसे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। कम्युनिकेशन इज द की। जब यस तक मैम। एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है फ्रॉम बोथ द साइड्स, ट्रीटमेंट कैन नॉट टेक प्लेस। दैट इज वेरी कॉमन। मेरा या लास्ट राइट। वेबिनार भी था अराउंड 5 मंथ्स बैक, उसमें भी कम्युनिकेशन के ऊपर ही था, हाउ टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टूवर्ड्स द एलिमेंट टू द पेशेंट। जब तक कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैन नॉट बी फॉलो। दैट इज वेरी कॉमन थिंग। अब हम बात करते हैं ऐसे कैटेगरीज ऑफ पेशेंट की जो आपने कहा, जो लिटरेसी में भी कम है उनका, इतना पढ़ाई नहीं कर रखा है ना, वो फ्री कैंप्स में आते हैं। उनको हाउ कैन यू सजेस्ट देम, राइट? यही क्वेश्चन है ना आपका, या और राइट। कैसे पता करें कि उनको दिक्कत है क्या? यस मैम। देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, यमुना खादर वगैरह में भी बहुत सारे कैंप्स लगते हैं। जब हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, एक न्यूज़पेपर सेलर आता है, यस मैम। वेजिटेबल सेलर आता है, ठीक है, इनसे पूछोगे, दे वोंट बी टेलिंग यू, दे कुड नॉट टेल यू कि एग्जैक्ट किस पॉइंट पे उन्हें पेन है या क्यों पेन है उन्हें। बट ओनली थिंग यू नीड टू आस्क इज, आप करते क्या हैं, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल? जब वो बताएंगे, नाउ एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर, इट इज योर ओन माइंड टू रिवर्ट टू द पेशेंट की व्हाट एग्जैक्टली इज द मेन कॉज बिहाइंड दिस। वो यस तो मैम। आपके ऊपर ही है। इतना पता लगाना इज वेरी नेसेसरी कि जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बाद खुद समझ जाओ ना कि वो क्या करता होगा। अगर वो बोल रहा है उसके शोल्डर में पेन है, और वो क्या है, न्यूज़पेपर सेलर है, तो न्यूज़पेपर कैसे देता है? दे फोल्ड इट एंड दे थ्रो इट। उसमें जर्क आया होगा, स्ट्रेच हुआ होगा, मसल टीयर हुआ होगा, टेंडन हुआ होगा, कुछ ना कुछ टेंडन में, जॉइंट्स में, मसल में, बोन्स में कहीं ना कहीं है। कब है? बिकॉज उनकी एक्टिविटी ये है। पेशेंट इज नॉट गोइंग टू टेल यू, खासकर ऐसे पेशेंट्स जो कैंप में आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं दैट हम ऐसे करते हैं और हमें हुआ। यू नीड या टू, राइट। या यू नीड टू नो इट ऑन योर ओन। ये आपकी अपनी, ये डॉक्टर की अपनी नॉलेज और कम्युनिकेशन टेक्निक होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मैम बराबर है, बनाया भी अच्छा, उनसे समझा भी, बट जब उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, हम समझ गए कि पेशेंट का पेन कोजेस शोल्डर का है, पूछ भी लिया कि भाई आप क्या काम करते हो, हमने ट्रीट भी कर दिया, बट रिजल्ट नहीं मिलता मैम। रिजल्ट नहीं मिलता है मतलब क्योंकि आपने ट्रीटमेंट किया, आपने उनको अवॉइड करने को नहीं बोला वो चीज। ये तो जी। हमने बात किया था ना थर्ड सेगमेंट में, वी डिड डिस्कस हाँ दिस, जी, हाँ जी। कि हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं बट गोल अचीव नहीं होगा।
हम अल्ट्रासोनिक और टेंस लगाए जा रहे हैं, बट जब तक वो चीज, वो कॉज ही खत्म नहीं होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप राइट। ट्रीटमेंट करते रहो, वो फेंकते ही रहेंगे न्यूज़पेपर ऐसे, देयर इज नो यूज। वो तो पेन करेगा ही ना, वो तो स्ट्रेच रहेगा ही। तो यू नीड टू टेल देम द ऑल्टरनेटिव्स, यू नीड टू टेल देम कि इस एक्टिविटी को अभी 1 महीने मत करिए, इस चीज से बचिए, ये मत कीजिए। राइट। दिस इज हाउ गोल कैन बी अचीव। इन लोगों में गोल अचीव करना ही इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि ये नहीं छोड़ सकते ना, ये कैसे छोड़ देंगे, उनका घर चल रहा है ना उस एक्टिविटी से। या राइट। But at the same time, as a doctor, you need to tell them. And at a certain point, our job is done. हमने बोला, बताया, समझाया, now it is up to the patient. We cannot enforce anything on to the patient. आप छोड़ ही दो, आप करो ही मत. That is not how it can work, right? या राइट। I मेरे पास hope एक पेशेंट है मैम। patients. Hmm. यस, एक पेशेंट है जिनके यहाँ पे एज 29 एज ईयर ओल्ड है, और सर्वाइकल के जस्ट नीचे, नेक के नीचे हम्प है। Hmm. कि अभी 1 वीक हो गया कंटिन्यू उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट हम्प मैम, पेन कम हो गया, स्वेलिंग चली गई, बट Hmm. जो हम्प है वो उसी साइज का है, वो कम नहीं हुआ। Occurrence क्या थी? Why did it occur? हम्म, देखो, हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें इन दिस केस आई कैन फील कि एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर, वेयर यू आर लैकिंग इज हिस्ट्री टेकिंग। अच्छे से यस मैम। असेसमेंट और हिस्ट्री टेकिंग नहीं हुई है। ये पूछो कि हुआ कब, क्या करते हैं आप, कहाँ से हुआ। सी, डॉक्टर असेसमेंट है मैम। प्रोसेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डॉक्टर हैं यस मैम। किस चीज के? होम्योपैथिक डॉक्टर है, मतलब सिटिंग का बहुत ज्यादा है। होम्योपैथिक का तो सिटिंग का ही होता है काफी ज्यादा, उनकी नेक जी। आइसोमेट्रिक्स कभी नहीं हुई है, इसका मतलब। उनका डाइट पूछा है, आयोडीन का कितना कंजम्पशन है, क्या है। ऑल दीज फैक्टर्स शीला, दीज फैक्टर्स, यस मैम। बहुत सारी असेसमेंट में चीजें दैट आई विल बी स्पीकिंग टू यू इन द नेक्स्ट वेबिनार, इन द नेक्स्ट सेशन। अभी तो इसमें वी कैन नॉट इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर केस, बट असेसमेंट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन वर्क ऑन। उसके बाद ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बन सकता है। हम्प है ओके मैम। क्योंकि एक्सरसाइजेज ही नहीं हुई है, एक्टिविटी ही नहीं है नेक की, शोल्डर की। जब आप हमको ट्रीट कर रहे हैं ना, यू नीड टू फोकस ऑन द शोल्डर एज वेल। खैर, दिस इज नॉट रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, बट दिस इज हाउ असेसमेंट एक्चुअली वर्क्स। ऑल राइट, ओके मैम। आई होप आई यस मैम। मेड सेंस। थैंक यू मैम। Welcome. Well, here, everyone, the audience who are watching us on various YouTube channels, Instagram, and all other social media sites, this was today's topic: prevention and management of work related musculoskeletal disorders. I do hope that this video, this episode was useful to us. Also, tell me in the comments what next topic would you like me to come up with and tell you all about that. Thank you so much for being such a patient audience. We'll see you in the next episode. थैंक यू मैम।